Welcome back, students. We were talking about the process of making yarn into fabric. For that, I have told you two ways or two methods. The first is weaving and second is knitting. First, we'll talk about the weaving. See, in weaving, ध्यान से सुनना. In weaving, what is done? The fabric is produced by arranging or by passing the threads in one direction like this. But along with it, there are another threads which runs exactly at right angle to these threads. Okay, that day if you remember, I have shown you one piece of cloth and I told you just observe in front of the light or in the opposite direction of sunlight. You will notice small square shapes into that, isn't it? So when the threads are running perpendicular to another threads, that time that process is called as weaving. क्या बोलते हैं उसे? Weaving. In that case, you need two sets of thread. Okay, and you can use different shades also. You can use same also. It's up to the choice. This weaving is done by using looms. ओके मतलब वो जो डिवाइस होता है या वो जो मशीन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम ये ऐसे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं फैब्रिक का, उसे कहते हैं लूम. एंड दिस लूम इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज हैंड लूम एंड अनदर इज पावर लूम. ओके, इफ यू हैव विजिटेड see in our Maharashtra nearby Paitan, many small scale factories or domestic level factories are there which are producing that a particular type of sari called Paithani. It is very traditional outfit of our Maharashtra. महाराष्ट्र की काफी ट्रेडिशनल पहनावा में से एक आता है वो जो है पैठनी. वो वहां पे बनाते हैं हैंडलूम से. अगर कभी आप में से कोई गया भी होगा शायद, या फिर अगर कहीं आप गए भी तो यू विल नोटिस दैट देयर इज अ वुडन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इज देयर और वुडन स्केलेटन इज देयर. एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, एंड दे यूज्ड टू पुल इट. ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं. मीन्स some threads are arranged like this parallelly, some threads are arranged like this. So वो हर एक जो लेयर बनती है वो पैरेलल और परपेंडिकुलर बन जाती है, नॉट पैरेलल. लाइक दिस एक लाइन हो गई, फिर से ऊपर से ऐसे और उनको वो हैंडल बनाए हुए होते हैं रोप के जिससे वो डिवाइस चला सके. दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज हैंडलूम. अंडरस्टैंड? हैंडलूम. एंड the loom which is run on electricity, मतलब जो इलेक्ट्रिक लूम्स है उनको बोलते हैं पावर लूम्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर पे चलते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पावर लूम. समझ में आया? The example which I have given like saris, then shorts, then pants, pajama, kurti, all these are made up by this process of weaving. Understand? It is made up by the process of weaving. In that weaving, it is done by using looms only. We are not using any type of needle or any type of machine which we are using in knitting. मशीन मतलब जो छोटे से सुई के जैसे रहते हैं जो हम बुनाई के लिए यूज करते हैं, that we are not using. We are using looms. समझ में आया weaving कैसे होता है? कभी चांस मिले या फिर कभी आप गए उस एरिया में, सो रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स, इवन आई एम रिक्वेस्टिंग योर पेरेंट्स टू प्लीज शो देम एट लीस्ट इन द वीडियोज ऑन यूट्यूब. वहां पे जब जाएंगे तब जाएंगे, बट राइट नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट. क्लियर? The next is knitting. Okay,
नेक्स्ट इज निटिंग। अभी निटिंग कैसे होता है मैं बताती हूँ आपको। निटिंग इज फॉर्मिंग द क्लोथ बाय लूप्स, ओके, बाय लूप्स। देखो कोई ग्लव्स ले लो या फिर स्वेटर ले लो, अगर कहीं से एक धागा निकल गया है, कहीं से एक धागा निकल गया है तो उसको खींचो, यू विल नोटिस दैट दैट होल फैब्रिक इज कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल थ्रेड। एक पूरा ऐसा निकल के आता है वो थ्रेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इट इज मेड ऑफ सिंगल सेट ऑफ yarn, okay, it is fixed into one another by forming a loop, okay, loop जो मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किए ना वो सारे loops होते हैं, okay, by forming a loop with the help of needles, or we can say knitting needles, क्योंकि the needles which we are using generally at our home is completely different that of knitting needles. You can use one or we can use two. वो देखो जब किसी घर में if कोई खुशखबर है, मतलब if a baby is coming at any home, then maybe that mother or that pregnant lady, और उनके घर में जो सीनियर होती है जैसे हमारी ग्रैंडमदर या ग्रेट ग्रैंडमदर, she used to start to make a small sweater या gloves या cap for that coming baby, right? जो बेबी होने वाला है या जो बेबी आने वाला है घर में, छोटा सा मेहमान, उनके लिए छोटा सा स्वेटर, छोटे से ग्लव्स या कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पे वो जो ऐसी स्टिक लाइक और थोड़ी सी बेंड होती है, ऐसी लंबी चौड़ी होती है और थोड़ी सी ऐसी बेंड होती है, थोड़ी हल्की, ताकि उसमें वो यार्न फंस सके या अटक सके। सो इससे बनाते हैं। समटाइम दे आर यूजिंग वन, समटाइम दे आर यूजिंग टू, क्लियर? एंड नॉट ओनली फॉर दिस वुलन क्लोथ्स, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नीटिंग बाय मशीन, देन सी हमारे जो इनर वेयर्स होते हैं, जो होजियर के होते हैं, जैसे हमारा बनियान, जैसे हमारे सॉक्स, जैसे हमारे ग्लव्स जो आते हैं आजकल जो समर में हम पहनते हैं, वो सारे बने हुए होते हैं निटिंग की प्रोसेस से, बट नॉट बाय नीडल, बाय द मशीन। अंडरस्टैंड? सो देर आर टू मेन प्रोसेसेस टू कन्वर्ट द yarn into fabric. First, weaving, which is used by the loom. The loom is also two type. First type is hand loom and second type is power loom. ठीक है? In knitting, we need only one set of yarn. It can be any, it can be woolen, it can be silk, it can be any. It's up to the choice of the person who is knitting. And it is done at the domestic level. मतलब घर पे छोटे छोटे अगर छोटे एक दो चीजें बनानी है तो हम मैन्युअली करते हैं यूजिंग नीडल्स, नीटिंग नीडल्स, और फैक्ट्रीज में इट इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। क्लियर? अभी क्लॉथ कैसे बनता है वो देख लिया, यार्न कैसे बनता है वो देख लिया, फाइबर क्या है दैट ऑल्सो वी हैव थिंक, नेचुरल कौन सा है, सिंथेटिक कौन सा है, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। बट कभी सोचा है कि ये सारा कहां से स्टार्ट हुआ है? When the process of making clothes has been started, because if you have seen the pictures of our ancestors long time ago, they are just in the say fur, एनिमल की फर ऐसे लपेटे हुए हैं या फिर बड़े बड़े पत्तों से खुद को कवर किया हुआ है, राइट? In the beginning, if you talk about the history of the cloth, in the very beginning मतलब एकदम शुरू में जब इंसानों ने केव्स में रहना वगैरह स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे they were hunting the animals and that skin or that fur of animal they were using to cover themselves, right? Sometimes they were using bigger size leaves or the small twigs of the plants to cover themselves. Slowly, when they have started to settle at some place for short period of time, that time with the help of thin twigs they have started to
नीट ही बोलेंगे अभी हम उसको, उनसे छोटी छोटी वो सब्जी वगैरह या फिर जो फल वगैरह कलेक्ट करने के लिए वो बास्केट बनाते थे, जैसे बाम्बू के वगैरह बास्केट बनते हैं ना, नॉट एज एक्यूरेट एज दैट बट समवॉट लाइक दैट. धीरे 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 दे अंडरस्टैंड दैट दिट फाइबर्स व्हेन वी bring together or adjust together anyhow, it gives the cloth or something because of which or with the help of which we can cover ourselves instead of using the animal's fur. So after that, see, after that means not like tomorrow or a year after that. After a few generations, when people have started to do the agricultural practices on the bank of river, जैसे हमारे इंडिया में सबसे पहले जो हमारी गंगा नदी है उसके किनारे पे खेती करना स्टार्ट किया था हमारे पूर्वजों ने. वैसे ही इजिप्ट में जहाँ जो सबसे बड़ी नदी है वहां की नाइल नदी, ऑन द बैंक ऑफ दैट रिवर पीपल हैव स्टार्टेड टू डू द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड देन दे हैव स्टार्टेड टू रेयर द एनिमल्स, मतलब पेट्स रखना, डोमेस्टिक एनिमल्स रखना स्टार्ट किया था. So they were using their fleece मतलब उनके जो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं उनसे उन्होंने धीरे धीरे कपड़े बनाना स्टार्ट किया. अर्लियर कपड़े बनाना मतलब क्या, नॉट लाइक साड़ी एंड कुर्तीज और जीन्स और टी शर्ट्स, ऐसे नहीं. जो पीस ऑफ क्लॉथ बनता था उससे वो बस खुद के अराउंड रैप करते थे और खुद को ढकते थे. धीरे धीरे जब स्टिचिंग की प्रोसेस इवॉल्व हुई या फिर स्टिचिंग करके हम शेप में बना सकते हैं, ये जब इन्वेंशन हुआ तब कपड़ों को अलग अलग आकार और नाम आने लगे. जैसे कि ये ब्लाउज है, ये साड़ी है, ये शर्ट है, ये टी शर्ट है, ये जीन्स है, ये ट्राउजर है, ये पैजामा है एंड सो ऑन. अंडरस्टैंड? टिल दैट टाइम our ancient people or our ancestors were just wrapping the cloth around them and so on. Generation by generation the inventions have taken place and at present you know which type of clothes and variety of clothes we are wearing. Yes students, this is what about the chapter fiber to fabric. Along with this we have completed this chapter. Now what you do? What's your responsibility? You have to read this chapter very carefully. You have to write all the notes, all the points of it, and you have to prepare yourself for the test on this chapter. Soon I will tell you when I will conduct the test. Clear? Till that time, if you are having any problem, please ask. Do not keep any of your doubt pending. ठीक है? All the best.